Hello students. See our next topic is chemical properties of alkyl halides and aryl halides, right? But when we talk about the chemical properties of alkyl halide, we need to discuss some of their stereochemical aspects. Stereochemical aspect is related to their optical isomerism behavior. Because when we have talked about isomerism shown by alkyl halides, we have discussed one point that they show optical isomerism as well. So when you carry out any change across the alkyl halide, they may undergo some stereochemical aspect changes as well. So we need to discuss that optical isomerism before going to the chemical properties, right, beta? So our next topic is optical isomerism. First we'll talk about the general. We'll take the general idea of optical isomerism. What is that? How does it take place? What all things related to optical isomerism? And then we'll see optical isomerism in case of alkyl halides, right? Or stereochemistry of optically active alkyl halides. तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम आइसोमेरिज्म का मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं. Isomerism is of two types: structural isomerism and stereoisomerism. Right, beta? Stereoisomerism can further be divided into three types. Those things we already talked about in 11th class in detail, in fact. But let's recapitulate them once. Our next topic is optical isomerism. Optical isomerism, right, beta? So before starting it, let me tell you that we have isomerism, and you all are aware of isomerism, the process in which compounds, this always occur in pairs. Remember, isomerism always occur in pairs. They can be a pair of two, that can be a pair of group of three, and so on. So isomerism is of two types: structural and stereo. Structural we already discussed. There are many types like chain, like position, functional, like ring chain, metamerism, and tautomerism. Right. So isomerism is something in which the molecules have same molecular formula, but they may have different structural formula, or they may have different spatial arrangement. Right. That is isomerism, in which we are having two types: structural and stereoisomerism. In structural isomerism, they have same molecular formula, the compounds which have same molecular formula but different structural formula. Different structural formula. Interestingly, in stereoisomerism, stereo words come from space. The stereo word comes from space. So in stereoisomerism, the compounds have same molecular formula, same structural formula, but they have different spatial arrangement. So compounds having same molecular formula, same structural formula even, but different spatial arrangement of atoms. Or groups. That is stereoisomerism. For example, we talk about cis and trans. Cis and trans is a part of stereoisomerism, right, beta? So स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है 11th क्लास में, ठीक है बेटा? चेन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, बहुत वैरायटी का हमने पढ़ लिया है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बट लेट मी डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिटेल अगेन. So this is of three types. They all have same molecular formula, even same structural formula. For example,
If I write CH3, CH, CH, CH3, right? For this compound, I can write two stereoisomers like this: CH3, CH, double bond, CH3, CH, and C double bond C, CH3H, H, CH3. Now you can see that they have same structural formula, they have same molecular formula. The only difference is their spatial arrangement of the atoms. In this case, if we have two methyl groups on one side, in this case we have two methyl groups on opposite side. So that's the difference. And this is cis and this is trans, right beta? So ये हुआ stereoisomerism. This is one of the example. एक मैं और example लेती हूँ. Let's say आपके पास compound है ये वाला CH3H Br, and let's say this side you are having C3H7. This is one compound. इसी को मैं थोड़ा घुमा के लिख दूँ. घुमा के किस तरीके से कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ लिख दिया मैंने Br, and let's say this is C3H7. जैसे इसका हमने नाम दिया सिस ट्रांस, ऐसे इसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंगली क्या आने वाला है. लेट मी टेल यू, ऑल्दो ये डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. सिस ट्रांस यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बट ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनके नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दे बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स. क्लियर टू एवरीवन? सो सच लाइक दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. Such compounds are called optical isomers. और इसके बाद एक और कैटेगरी होती है स्टीरियोआइसोमेरिज्म की, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, right beta? So stereoisomerism is of three types: geometrical, optical and conformational. First, second, third. We already discussed about them. Conformational we have already talked about it when we have discussed hydrocarbons, right? You all are aware of it. Geometrical isomerism arises due to restricted rotation across double bond. Conformational isomerism arises due to free rotation across single bond. And optical isomerism arises due to their spatial arrangement. So now let's talk about optical isomerism in detail, right beta? So our next topic is optical isomerism. So as we already know, isomerism is a process and isomers are the compounds. So optical isomerism क्या होगा? Optical isomers क्या होते हैं? So isomers क्या हुए? The pair of compounds or the compounds जो compounds plane polarized light को रोटेट कर दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं. सो द कंपाउंड्स विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. PPL बाद में मैं ये टर्म यूज़ करूँगी. प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट बेटा? एंड द प्रोसेसेस, एंड व्हेन यू लुक एट अ पेयर का मतलब हुआ आपने कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है, उसका मिरर इमेज लिया. अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं तो वो जो पेयर होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और वो जो प्रोसेस होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ये सारी टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी, तो हम एक बार इनको डिस्कस करते हैं होती क्या है. देखो, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है. अगर हम एक ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो पहले तो प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं. अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें, ऑर्डिनरी लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट में ना उसके वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ऑर्डिनरी लाइट में, ठीक है. तो ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करते हैं? एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं. किससे पास करते हैं बेटा? निकोल प्रिज्म. एक प्रिज्म है जो किससे बना है? कैल्साइट से. कैल्साइट CaCO3 का बना हुआ है.
इस प्रिज्म से पास करेंगे तो पता है बहुत इंटरेस्टिंगली क्या होता है, ये सारे वाइब्रेशंस को आउट कर देता है एक्सेप्ट वन, सबको ब्लॉक करेगा। इट अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस। जैसे इसने सपोज ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को अलाउ कर दिया इस टाइप के, या इसने सारे ये वाले वाइब्रेशंस को अलाउ कर दिया, सारे के सारे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस को अलाउ करता है ऐसे। सो ये वाली जो लाइट अब हमें मिलेगी, ये लाइट आपकी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है बेटा? दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फाइन बेटा। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है पीपीएल आपका, ये पीपीएल क्या है? ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक मानी वन कलर, मोनो मानी वन, क्रोम मानी कलर, जिसमें एक ही कलर हो, यानी कि एक ही वेवलेंथ हो। सो दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट विच हैव वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन, राइट? सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक से समझ जाना बेटा, जस्ट मोनो मानी वन, क्रोम मानी कलर, यानी कि एक ही जिसका वेवलेंथ हो। मोनोक्रोमैटिक लाइट हैविंग वाइब्रेशंस only in one direction, they are called plane polarized light. Clear to everyone? तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिला है, इस सेटअप को हम बोलते हैं पोलराइज़र। ये जो सेटअप है आपका, इस सेटअप को क्या बोलेंगे बेटा? दिस कंप्लीट सेटअप जिसमें हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलराइज़र। तो पोलराइज़र की हेल्प से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले ली। अब जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखिए, कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, आपको लगता है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो, जैसे सपोज आपने ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लिया। किसका सोल्यूशन ले लिया आपने? ग्लूकोज का सोल्यूशन। किस तरीके से हमारा सेटअप होगा? ये ऑर्डिनरी लाइट है बेटा, एक साथ ही करते हैं पूरा, ऐसा नहीं है पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलग से सेटअप कर देंगे। सो दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। इसको हमने पास करवाया निकोल प्रिज्म से, ठीक है? तो हमें क्या मिला? वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। लेट्स से ये वाली हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई जिसके सारे वाइब्रेशंस इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसको हम पास करवाएंगे एक, जो अब हमें पोलराइज्ड लाइट मिली है उसको हम पास करवाएंगे एक पोलैरीमीटर ट्यूब है अपने पास बेटा, इसको पोलैरीमीटर ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब, इसके अंदर हमने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन डाला हुआ है, हैविंग द कंपाउंड, इसके अंदर वो कंपाउंड हमने डाला है। जैसे इस केस में हम मान लें हमने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल दिया, लेट्स से ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है? इंटरेस्टिंगली क्या होगा, जब हमने ये लाइट को पास करवाया ग्लूकोज सॉल्यूशन से, तो आपको पता है ये लाइट क्लॉकवाइज रोटेट कर चुकी थी। जैसे ये ऐसे लाइट जा रही, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे रास्ते में हमने कोई सॉल्यूशन रखा है और सॉल्यूशन के थ्रू जब ये लाइट पास करके निकली तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम चुकी थी। कितने एंगल से? 52.7 डिग्री से। सो दिस हैज़ रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में घूम गई बेटा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये नीडल 12 पे है, इधर वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सो हैज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज, रोटेटेड क्लॉकवाइज। और वो भी कितने एंगल से घूमा बेटा? ये 52.7 डिग्री, इतने एंगल से ये घूम चुकी थी। सो देखिए ये हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अब अगर ग्लूकोज ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा दिया, इसका मतलब वी कैन से दैट ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो ग्लूकोज है वो क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, वो कंक्लूजन बाद में देखेंगे, पहले इनको लेबल कर देते हैं। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज निकोल प्रिज्म, this is plain polarized light, this is a polarimeter tube containing the compound जिसका हमें चेक करना है कि उसके अंदर आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसको पास करेंगे तो वो उसको एक एंगल से रोटेट करेगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो दो डायरेक्शन में घूम। एंड दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड पोलैरीमीटर, ठीक है बेटा? इसको क्या बोला जाता है? पोलैरीमीटर बोला जाता है। ये इसमें कंपाउंड डाला था।
दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ, दोनों केस हम लेते हैं। लेट्स से दिस ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास किया, निकोल प्रिज्म से पास किया तो लेट्स से हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। और अब हमने जो पोलैरीमीटर ट्यूब ली उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया फ्रुक्टोज़ का। सो हमने इसके अंदर डाल दिया फ्रुक्टोज सॉल्यूशन। तो ये आपका पोलैरीमीटर ट्यूब है, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज निकोल प्रिज्म, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट जिसमें सब जगह वाइब्रेशन है हर डायरेक्शन में, सिर्फ एक बचता है यहाँ पे। तो इस पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू जब इसको पास किया तो इंटरेस्टिंगली इसने इसको किधर घुमा दिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। वो जैसे क्लॉकवाइज घुमाया था ऐसे इसने रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कितने एंगल से इसको रोटेट किया, -92.4 डिग्री से। कितने एंगल से रोटेट किया बेटा, देखो मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है, अगर प्लस होगा तो प्लस का मतलब समझ जाना क्लॉकवाइज रोटेट किया है, अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रुक्टोज इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव है बट उसको रोटेट किस डायरेक्शन में करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लियर है बेटा। सो दिस वन इज, ये जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। एंड दिस इज लीवो रोटेटरी, LAEVO, लीवो। सो स्मॉल डी इसके लिए आ जाएगा, स्मॉल l इसके लिए आ जाएगा, प्लस इसके लिए आ जाएगा, माइनस इसके लिए आ जाएगा। तो कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली चीज़ तो ऑप्टिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी नहीं हर कंपाउंड ऐसा हो, बट जो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। और वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। दो स्टेट होते हैं रोटेट करने के, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो लीवो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव भी बोलेंगे, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव भी बोलेंगे। सो इनका जो रोटेशन हुआ, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी डन इन टू वेज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी की तरफ देख लेना बेटा, नीडल अगर 12 पे है तो बिल्कुल स्टेशनरी है। उसके बाद अगर मान लो ये 1 2 3 की तरफ आती है तो मान लीजिए आपने इसी नीडल को इस तरीके की रेडिएशंस को पास करवाया है किसी पोलैरीमीटर ट्यूब से जिसमें एक कंपाउंड रखा है। अगर वो उसको बिल्कुल टच नहीं करता, वो 12 पे ही रहती है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। और अगर मान लो उसको क्लॉकवाइज 1 2 3 की तरफ घुमाता है, इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज 11 10 की तरफ घुमाता है, इसका मतलब वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। सो इफ रोटेट्स क्लॉकवाइज देन दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज प्लस से रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज। उसके बाद है आपका लीवो रोटेटरी, स्मॉल l और माइनस, फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज। आपको पता है ग्लूकोज के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, जिस आइसोमर की हम बात कर रहे हैं वो प्लस है। और इसी का अगर हम मिरर इमेज ले लेंगे ना बेटा, अगर ग्लूकोज प्लस का मिरर इमेज ले लेंगे तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, लीवो रोटेटरी मिलेगा। मिरर इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से हमने देख लिया है ये पूरा पोलैरीमीटर सेटअप है दोनों ही केस में, दो अलग अलग कंपाउंड्स हमने लिए हैं, तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। ये तो हो गया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच मेक्स अ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई, इफ़ 3 कंडीशंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपाउंड, ठीक है, इफ़ इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, पहला केस, देन दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी और प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे स्मॉल डी से कर दो चाहे प्लस से, एक ही मतलब होता है बेटा। ठीक है। दूसरा केस है आपका इफ़ इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस इज लीवो रोटेटरी, एल और नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, एंटी के लिए नेगेटिव साइन दिया है और लीवो रोटेटरी बोला गया है।
ये स्मॉल डी ये स्मॉल एल है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल डी कैपिटल एल का अलग मीनिंग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थर्ड केस है इफ़ नो रोटेशन, इफ़ नो चेंज in the plane of plane polarized light, then the compound is optically inactive. ये दोनों केसेस में तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ओ ए का मतलब हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, इस केस में क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन है जो एक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बनाती है।